Dear students, I am going to explain you the second chapter of democratic politics, chapter 2, federalism. In this chapter, we will discuss about the some basic features of federalism, the difference between federal government and the unitary government, and also we will look ahead which things make India a federal country as well as some of the things about decentralization. So, let's begin this chapter. What is federalism? Okay, in a simple words, I am telling you federalism means the division of power between two or more levels of government. Okay, the division of power between two or more levels of government is known as federalism. In federalism, all the powers not are not in the hand of the central government or any single government. All the powers are divided among the different levels of government. For example, we discussed in the previous chapter about the Belgium and the Sri Lanka. Okay, बेल्जियम और श्रीलंका के मामले में हमने क्या डिस्कस किया था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग की गई थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट एक अलग थी, बट ऑन द अदर हैंड देयर वाज नो पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। मीन्स all the powers were in the hand of the Sinhalese people and the Sinhala government। आपको याद होगा ये। तो जो बेल्जियम का एग्जाम्पल है वो एक फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में गवर्नमेंट ने अपने सारे पावर्स अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ या अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द चेंज that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। ये कब हुआ बेल्जियम में? 1993 में, जब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को भी दे दिए। इन श्रीलंका continues to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system। ठीक है, श्रीलंका में सिंहलीज पीपल मेंटेन द श्रीलंका एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, जबकि तमिल लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल गवर्नमेंट बन जाए, उनको भी पावर मिले, लेकिन ऐसा उस समय नहीं हो पाया और श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। हमने देखा था तमिल और सिंहलीज के बीच में लास्ट चैप्टर में। देखिए ये मैप जो दिया हुआ है, जितने भी रेड कलर से आपको ये कंट्रीज दिख रही हैं, रशिया, इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑल दीज आर बिग कंट्रीज एंड दे आर हैविंग द फेडरलिज्म इन देयर ओन कंट्री। ये लिखा है, देखिए, दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, देयर सिटीजन्स मेक अप 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federation। Okay, can you notice an exception to this rule in this map? So out of 193 total only 25 countries are the federal countries। लेकिन मुख्य बात क्या है, all these are big countries like रशिया, इंडिया, यूएसए, कनाडा, सब ब्राज़ील, ये सब बिग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और टोटल वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रह रही है, ठीक है। सो फेडरलिज्म इज एक्सपांडेड मेनली इन दी बिग कंट्रीज। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी है और पंचायती राज के रूप में लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। और सबके साथ डिवीजन ऑफ पावर है। यूजली A federation has two levels of government,
One is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that took after much of the day-to-day administrating of their state. Both these levels of governments enjoy their independent power of the other. ठीक है, मोस्टली कंट्रीज में देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बट द कंट्रीज लाइक इंडिया which are having a very large territory, which are having the large population, the top population belongs from different cultures. हमारे यहाँ पर इसलिए 3 लेवल का 3 टीयर्स का लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी मतलब सिंगल गवर्नमेंट. ठीक है. यूनियन मीन्स यूनिटरी मीन्स सिंगल गवर्नमेंट. तो यूनिटरी गवर्नमेंट इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. अंडर द यूनिटरी गवर्नमेंट either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government. समझ में आया होगा आपको कि यूनिटरी गवर्नमेंट में ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. क्लियर है. और जो भी अदर गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं दे आर फुली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन्स दैट if there is the provision of provincial government, but those provincial government or other types of government, they are totally dependent and they are totally under the control of the central government. They cannot do anything with their own, they cannot take any decision by their own. They have to depend on the central government for doing any work. ये कहाँ होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है. Government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट जस्ट इसके अपोजिट है. इन फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो enjoys equal status of power, it enjoys equal status of rights. Okay, the central government cannot directly impose any order over the state government. State government are free to take their own decision in most of the matters because they are also elected by the people of their respective states. ठीक है. जैसे आज एजुकेशन का सब्जेक्ट है, समझ लीजिए एक CBSE बोर्ड है जो पूरे कंट्री में फैला हुआ है और सारे अपने पूरे देश के बच्चे CBSE के स्कूलों में एडमिशन लेकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए उसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है. लेकिन उसके साथ साथ हर स्टेट का अपना एक स्टेट बोर्ड भी है, MP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड. तो बहुत सारे बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे अपने स्टेट स्कूल के में भी पढ़ रहे हैं. तो एक एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. क्लियर है. इसलिए ये जो मुद्दे आते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की आज जो चल रही है, गाइडलाइंस आती हैं, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने बोर्ड के लिए गाइडलाइंस को फ्रेम कर रहा है. ठीक है. तो फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ये क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज में दिया हुआ, आप लिख लेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? संघवाद से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. संघवाद की विशेषताएं बताइए. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ये आ चुका है. अब इसी में और करके क्वेश्चन लिखेंगे, और करके अथवा करके राइट डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. राइट डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब संघवादी सरकार में जहाँ
मीन्स दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पर केवल एक सरकार होती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स होंगे उसके जस्ट अपोजिट फीचर्स किसके हो जाएंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट के। तो दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम ये दोनों चीज़ डिस्कस करते जाएंगे। देखिए पहला फीचर्स, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन दी फेडरल सिस्टम। ठीक है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या जाएगा, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला डिफरेंस भी हो गया और दोनों के अलग अलग फीचर्स भी हम बताते जा रहे हैं आपको। सेकेंड, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। देखिए क्या होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के अंडर में एक ही पीपल होते हैं। मतलब जैसे आज हम लोग एमपी गवर्नमेंट में रह रहे हैं, तो हम एमपी गवर्नमेंट के में भी अंडर में भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के में भी अंडर हैं। इसलिए हमें मोदी जी की भी डायरेक्शन को मानना पड़ता है जब पूरे देश के लिए कोई बात आती है, और जब स्टेट की बात आती है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ईच गवर्नमेंट सिट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार, अपना अपना एरिया है दोनों गवर्नमेंट का। किन मामलों में, लेजिस्लेशन बनाने में, मतलब कानून बनाने में। जैसे मैंने आपको एजुकेशन का मुद्दा बताया कि एजुकेशन के मामले में जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। पुलिस केवल स्टेट गवर्नमेंट्स की होती हैं। ठीक है, हर स्टेट की पुलिस हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने पुलिस के मामले में लॉ बना सकती है। टैक्सेशन, बोथ द गवर्नमेंट हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। क्लियर है, कुछ जो है टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भी अलग अलग है। सो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन जुरिसडिक्शन एंड दे हैव देयर ओन पावर इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स। ऑन द अदर हैंड, इन द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ सिंगल गवर्नमेंट। जो केवल सिंगल गवर्नमेंट होती है उसके पास ही सारे पावर यूनिटरी गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक है, थर्ड है द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of the each tier of government is constitutionally guaranteed। अब देखिए, whatever the rights, whatever the jurisdiction, all things are written in constitution। ठीक है, तो संविधान में बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मानना पड़ता है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अपर मोस्ट बॉडी, और वी कैन से द अपर मोस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन विच रन्स द कंट्री। संविधान में जो लिखा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से राज्यों के अधिकार को अपने हिसाब से कम कर दे, ऐसा नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए ये फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर है कि एवरीथिंग इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द अथॉरिटीज़ आर गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गारंटी ऑफ द राइट्स टू बोथ लेवल्स और द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल इंडिया के मामले में यहाँ पर पंचायती राज के बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे ये सब बातें आती ही नहीं है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है तो सारा जुरिसडिक्शन, सारे अधिकार, सारे राइट्स उसी के पास है। क्लियर है। फोर्थ फीचर्स, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये समझिए आप, जो मैंने अब भी डिस्कस किया था उसी बात को लिखा है इन्होंने कि only one level of government cannot change the constitution। ओके, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी कि हम स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को कम कर दें या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वी कैन हैव ऑल द राइट्स और वी कैन इंक्रीज अवर टेन्योर एरिया, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज
if they wants to make any change in the constitution, they have to get the support or they have to get the consent of the state government also. क्लियर है? समझिएगा इस बात को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स को चेंज नहीं कर सकती है. कहाँ पे? फेडरल गवर्नमेंट में. क्लियर है? जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में दे कैन change the constitution by their own wish because they are having only one government, so they don't need to take any consent from any level of government, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती ही नहीं है. इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर उन मामलों में जहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर रहे हो. ठीक है. फिफ्थ, courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. Fifth features, courts play a very important role in a federal government. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है अपने इंडिया का. हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है. कुछ स्टेट्स के, कुछ 2-3 स्टेटों के एक सिंगल हाई कोर्ट भी है, जैसे पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगता है. तो हर हाई कोर्ट और हर एक सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं. हर लेवल की गवर्नमेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. मीन्स इफ़ there any dispute occurs between the central government and the state government, these courts give their judgments according to the law, according to the constitutional provisions. ठीक है. तो कोर्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फेडरल गवर्नमेंट में किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने में. ऑन द अदर हैंड, यूनिटरी गवर्नमेंट में कोर्ट कैन नॉट प्ले एनी मेजर रोल, because in that case that unitary government can change the decision of the apex court or any court of the country. All the powers in the hand of the unitary government. जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक सरकारें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं झगड़ों को सुलझाने में. ठीक है. नेक्स्ट है 6th पॉइंट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. मीन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ क्लियरली रिटन दैट विच टैक्स विल बी टेकन बाय विच गवर्नमेंट. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, लोकल गवर्नमेंट के टैक्स, all the taxation power is clearly written in the constitution, so that the state government or the local government should not be depend only over the central government for their financial autonomy. अब देखिए, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने सड़कें बनवानी, हॉस्पिटल बनवाने हैं, लोगों को बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी पंचायती राज के अंतर्गत सरपंच को अपने गाँव में काम कराने डेवलपमेंट के. तो सबके पास अपने अपने टैक्स वसूलने के राइट होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा पैसों के लिए डिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेशन कर दे. कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर दे? कि जिस पार्टी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो पार्टी उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा सहायता दे जहाँ पर सेम पार्टी की सरकार है, और जहाँ पर अदर पार्टी गवर्नमेंट उनके साथ कम पैसे दे. तो ऐसा नहीं हो सकता है. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सबके टैक्सेशन पावर अलग अलग है. सबके लिए टैक्स अलग अलग डिसाइड कर दिए गए हैं. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और लोकल गवर्नमेंट के अपने जैसे कि जो दुकानें वगैरह लगती हैं उनके जो टैक्स होते हैं वो बाज़ारों में वो लोकल गवर्नमेंट लेती है. तो सबके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बनाए रखा गया, सबको फाइनेंशियल पावर दिए गए. 7th फीचर्स क्या है आपका फेडरल गवर्नमेंट का? हाँ, इसके पहले यूनिटरी गवर्नमेंट में ये सब सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि सारी एक ही गवर्नमेंट होती है, तो सारे टैक्सेशन पावर एक ही गवर्नमेंट के पास होते हैं.
द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, दो उद्देश्य होते हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट इन यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust with each. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो फेडरल गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सिंपल सी बात है, आज हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट अपने आप में बहुत बड़ी ही कल्चरल डाइवर्सिटी है, बट बिकॉज ऑफ द फेडरल सिस्टम वी आर मेकिंग अ यूनाइट कंट्री, वी मेक अ होल कंट्री एज अ इंडिया। ठीक है, सब मिलकर के देश बनाते हैं, मतलब यूनिटी सब में है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मीन्स एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन लैंग्वेज, ओन कल्चर, ओन फूड प्रैक्टिस। तो यदि हम केवल एक ही कल्चर को बढ़ावा देंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ओन मदर टंग में काम करने के लिए फ्री है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में, प्लस दे आर फ्री टू एक्सपांड देयर रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये सब फेडरल गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है कि म्यूचुअल ट्रस्ट से रहना और एग्रीमेंट के साथ रहना कि सब हम आपस में मिलकर रहेंगे। आज अपना स्कूल देखिए, आप अपने स्कूल में हर कैटेगरी का, हर स्टेट का बच्चा साथ साथ पढ़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साथ पढ़ता है, ग्रोथ करता है। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑल द पावर्स इन दी सिंगल गवर्नमेंट्स and they can promote only one culture, one religion और one language, जैसा अपन ने श्रीलंका के मामले में देखा है। तो ये क्वेश्चन आप अपने क्लास वर्क साइड में कर लेंगे। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।